اس کے کمرے میں ہر جگہ انسانی بال پڑے ہوئے تھے۔ پورے کمرے میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں بال نہ ہوں۔ کمرے کا پورا فرش، دیواریں سب کالے سیاہ بالوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ وہ ابھی چلانے میں ہی مصروف تھی کہ جب فرش پر پڑے ہوئے بالوں میں حرکت ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ایک خوفناک شکل اختیار کر لی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے کالے جادو کی خوفناک دنیا ایپیسوڈ نمبر 3۔ ہم گھر نہیں جا رہے ہیں کیا؟ حوریہ نے ہاشم کو انجان سڑک پر گاڑی موڑتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، ہاشم نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا اور پھر نظریں واپس سڑک پر مرکوز کر لیں۔ پھر کہاں جا رہے ہیں؟ اور آپ نے امی کو بتایا؟ وہ پریشان ہو جائے گی۔ میں گھر نہیں پہنچی تو۔ حوریہ یکدم پریشان ہو گئی۔ چلو تو بتاتا ہوں، باقی رہی ممانی کی بات تو ان سے اجازت لے چکا ہوں میں، ہاشم نے اطمینان سے جواب دیا۔ حوریہ بھی خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہاشم اسے ڈاکٹر نگہت کے کلینک کے باہر گاڑی روکی۔ کیا آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں؟ حوریہ نے کلینک پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہاشم نے فوراً اسے جواب دیا۔ پھر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتا، میں بس چاہتا ہوں کہ جس پریشانی میں تم گھری ہوئی ہو اس سے کسی بھی طرح تمہیں نجات حاصل ہو جائے، ہاشم سنجیدگی سے بولا۔ پھر آپ غلط جگہ لے کر آئے ہیں مجھے۔ میری پریشانی کا حل ڈاکٹر نگہت کے پاس نہیں ہے، حوریہ نے ترکی بترکی جواب دیا۔ پھر کہاں ہے؟ ہاشم اس کی بات پر چونکا۔ وہ، حوریہ سوچ میں پڑ گئی۔ بتاؤ کہاں ہے؟ حوریہ کی سماعتوں سے پھر وہی آواز ٹکرائی۔ اس نے نظر اٹھا کر ہاشم کو دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور وہ عجیب سے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم! حوریہ خوف زدہ ہو گئی۔ بول! ہاشم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ ہاشم چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے، حوریہ نے اپنی کلائی چھڑانے کی صحیح کرتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ یا اللہ مدد! حوریہ نے پوری قوت سے اسے اپنی کلائی آزاد کروائی اور کار کا دروازہ کھول کر سڑک پر بھاگنے لگی۔ حوریہ رکو! کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہو؟ ہاشم کار سے اتر کر اس کے پیچھے بھاگا۔ حوریہ اندھا دھن بھاگ رہی تھی جب سامنے سے آتی کار سے ٹکرا گئی اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ حوریہ! ہاشم زور سے چیخا۔ حور! ہاشم نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ حوریہ کے سماعتوں سے ہاشم کی آواز ٹکرائی تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر خوف کی لکیریں نمایاں تھیں۔ حور! تم اس طرح سے بھاگی کیوں تھی؟ ہاشم نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ حوریہ کے ذہن میں کچھ دیر پہلے کا منظر گھوما تو اسے ہاشم سے بھی خوف آنے لگا۔ تم کچھ بتانے والی تھی مجھے، بتاؤ کیا بتا رہی تھی؟ ہاشم نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ ہاشم! حوریہ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کچھ بتانا چاہا تھا کہ ہاشم کے نمبر پر کسی کی کال آئی اور وہ 2 منٹ میں آنے کا کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب کمرے میں صرف ایک نرس موجود تھی جو حوریہ کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اسے زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھی اور وقت پر ہسپتال پہنچنے کی وجہ سے زیادہ کوئی خطرے کی بات بھی نہیں تھی، اس لیے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ کل تک اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ اگر ہاشم نے بھی عریشہ کی طرح میری باتوں میں میرا پاگل پن سمجھا تو پھر، حوریہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا وہ جان سے عزیز شوہر زندہ رہے تو اپنا منہ بند رکھنا۔ حوریہ کے کانوں سے وہی خوفناک آواز ٹکرائی اور اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ حوریہ نے سامنے کا منظر دیکھ کر اپنی چیخ روکی۔ نرس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی اور وہ حوریہ پر جھکی عجیب نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، تم انہیں کچھ مت کرنا،
नहीं बताऊंगी किसी को भी, कभी नहीं बताऊंगी। हाशिम कमरे में आया था। हूरिया आंखें बंद किए बड़बड़ा रही थी। हूर, क्या हुआ? ये क्या कह रही हो? क्या नहीं बताओगी? हाशिम ने उसके करीब जाते हुए परेशानी से पूछा। हाशिम की आवाज सुनकर हूरिया ने आंखें खोल दी और उसकी नजर सीधी दरवाजे की जानब गई, जहां से वो नर्स अब बाहर जा रही थी। उसकी आंखों का रंग अभी भी गहरा सुर्ख हो रहा था, जिसे देखकर हूरिया और भी ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी। किसको देख रही हो? हाशिम ने तअज्जुब से उसे देखा, जो मुसलसल दरवाजे की जानब देख रही थी। हाशिम, मुझे घर छोड़ आए, हूरिया ने उसके सवालों को नजरअंदाज करते हुए कहा। अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो, इसलिए एक दिन तुम यहीं रहोगी। मैंने ममानी को बता दिया है, वो आती ही होंगी यहाँ। हाशिम ने जवाब दिया, मगर उसने कुछ कहना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं, तुम आराम करो। उसने इसकी एक नहीं सुनी और उसे बेड पर लेटाकर चादर उड़ा दी। काम हुआ कि नहीं? उसने किसी को कुछ बताया तो नहीं? कमरे में एक नस्वानी आवाज गूंजी। नहीं। अब की बार कमरे में वही दहशतनाक आवाज गूंजी। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता, तुम्हें हर पल उसके साथ रहना है। तुम उसे इतना डरा दो कि वो पीछे हट जाए। उसने अपने आसपास चक्कर काटते हयोले को देखते हुए कहा। जैसा आपका हुक्म। अब वो अपना असली रूप इख्तियार किए उसके सामने सर को खम दिए खड़ा था। बेटा, हूरिया की तबीयत कैसी है अब? ज्यादा गहरी चोट तो नहीं आई ना? कहाँ है वो? समा बेगम हाशिम को देखते हुए परेशानी से पूछने लगी। वो अभी अभी ही दानिश और ईशा के साथ अस्पताल पहुंची थीं। ममानी, आप परेशान मत हो, हूरिया ठीक है। बिल्कुल ज्यादा गहरी चोट नहीं आई है। हम कल सुबह उसे ले जा सकते हैं और वो अंदर कमरे में हैं, आप जाकर मिल लें। हाशिम ने उन्हें तसल्ली देते हुए अंदर जाने को कहा। तुम ठीक हो? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? समा बेगम ने हाशिम का ख्याल आने पर पूछा। जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, हाशिम ने जवाब दिया। सलामत रहो। वो उसे दुआएं देती हुई आरिशा के साथ अंदर चली गई, जबकि दानिश वहीं बाहर हाशिम के साथ रुक गया। तुम तो हूरिया को डॉक्टर निगत के पास लेकर गए थे ना, फिर ये सब कैसे हो गया? दोनों उस वक़्त अस्पताल के कैंटीन में बैठे हुए थे जब दानिश ने बात का आगाज़ किया। हाँ, मगर हाशिम ने बात अधूरी छोड़ दी। वो उलझा सा नज़र आ रहा था। मगर दानिश ने बगौर उसके चेहरे को देखा। मैं उसे लेकर गया था वहाँ, मगर हम मिले नहीं डॉक्टर से। क्यों? हूरिया ने मुझसे कहा कि मैं उसे पागल समझ रहा हूँ, इसीलिए उसे डॉक्टर निगत के पास लेकर आया हूँ। मैंने उसे कहा कि ऐसा नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम बस बिल्कुल ठीक हो जाओ। तो पता है उसने मुझसे क्या कहा? हाशिम ने उलझे हुए अंदाज में कहते हुए दानिश को देखा। क्या? दानिश ने पूछा। उसने कहा कि फिर आप मुझे गलत जगह लेकर आए हैं। मेरे मसले का हल डॉक्टर निगत के पास नहीं। फिर तुमने पूछा नहीं कहाँ है? दानिश हैरान हुआ। पूछा था, मगर उसे अचानक पता नहीं क्या हो गया था कि वह मुझे देखकर रोने लगी और साथ साथ कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रही थी, और फिर वो कार का दरवाज़ा खोलकर रोड पर भागने लगी। आगे की बात तुम्हें मालूम है? हाशिम ने उसे तफसील बताई। क्या मतलब हो सकता है इस बात का कि तुमने फिर कोशिश की उसे पूछने की? दानिश भी अब परेशान हो गया था। हाँ, मगर उसने कुछ नहीं बताया। हाशिम ने गहरी सांस ली। तुम परेशान मत हो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इस मसले का। तुम ममानी जान से रुखसती की बात करो, हो सकता है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाए। दानिश ने उसे मशवरा दिया। हाशिम ने उसकी बात सुनकर असर असबात में हलाया। वो खुद भी यही चाहता था कि बस जल्द अज जल्द रुखसती हो जाए। समा बेगम के बहुत इसरार करने के बावजूद भी उसने उन्हें घर भेज दिया था और खुद हूरिया के साथ अस्पताल में रुक गया था। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। हाशिम की अभी अभी आंख लगी थी।
जब हल्की सी आहट पर वो चौंक कर उठ गया। बेड पर नजर पड़ते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। ये हुरिया कहाँ गई? वो खुद से कहता हुआ खड़ा हो गया। हूर! वो उसे ढूंढता हुआ बाहर आ गया। ये कहाँ जा रही है? उसने हुरिया को सीढ़ियां चढ़ते देखकर सोचा। हुरिया रुको! वो उसे आवाजें देता हुआ उसके पीछे भागा। हुरिया ने हाशिम की आवाज सुनकर मुड़कर पीछे देखा। हाशिम पर नजर पड़ते ही वो अजीब अंदाज में मुस्कुराई और तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर भाग गई। उसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट में एक अजीब ही पुरइसरारियत थी। हाशिम उसके पीछे भागता हुआ छत पर आ गया। हुरिया, यहाँ क्या कर रही हो तुम? नीचे उतरो। हाशिम ने हुरिया को देखते हुए घबराई हुई आवाज में कहा, जो इस वक्त अस्पताल की छत की दीवार पर खड़ी, हाथ बात कमर के पीछे बांधे यूं टहल रही थी मानो फर्श पर टहल रही हो। हाशिम की आवाज सुनकर हुरिया ने निगाह उठाकर हाशिम को देखा और फिर अपने दोनों हाथ हवा में फैलाते हुए एक जोरदार कहका लगाया। हाशिम की नजरें हुरिया पर ही जमी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानब कदम बढ़ाने लगा। इससे पहले कि हाशिम उसके करीब पहुंच पाता, हुरिया पीछे की तरफ ढलक गई। हुरिया! हाशिम चौंक कर उठ गया। कमरा नीम रोशन था। हाशिम पूरा पसीने में शराबूर हो रहा था। वो तेजी से उठा और हुरिया के बेड की जानब बढ़ा। हुरिया बेड पर मौजूद नहीं थी। उसका दिल धक से रह गया। अपना ख्वाब याद आते ही वो तेजी से बाहर भागा। हाशिम छत पर पहुंचा तो हुरिया वहां बेहोश पड़ी हुई थी। हुरिया! वो तेजी से उसकी जानब बढ़ा। हूर! आंखें खोलो! हाशिम ने उसका सर अपनी गोद में रखते हुए उसका चेहरा थपथपाया। हाशिम, मुझे बचा ले। हुरिया ने धीरे से आंखें खोली और बमुश्किल अपना जुमला मुकम्मल किया। मैं हूं यहीं तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हुरिया के लफ्जों ने उसे उलझन में डाल दिया था। हाशिम उसे सहारा देता हुआ कमरे में ले आया। हुरिया एक बार फिर से बेहोश हो चुकी थी। वो लोग अस्पताल से घर जा रहे थे जब हाशिम ने उससे पूछा कि तुम छत पर क्या कर रही थी? हाशिम के सवाल पर हुरिया ने चौंक कर उसे देखा। मैं? उसने खुद पर उंगली रखी। हाँ, तुम कल रात छत पर क्यों गई थी? हाशिम की नजरें सामने सड़क पर मरकूज थीं। मैं तो सारी रात अपने बेड पर थी और मैं छत पर क्यों जाऊंगी, वो भी अस्पताल की? हुरिया की बात सुनकर हाशिम ने ब्रेक लगाया और गाड़ी साइड में मोड़कर रोक दी। कल रात के बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं? हाशिम हैरत से पूछने लगा। क्या मतलब, कुछ हुआ था? हुरिया ने जांचती नजरों से उसे देखा। नहीं, कुछ नहीं। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, ममानी इंतजार कर रही होंगी। हाशिम ने बात का रुख दूसरी जानब किया। हाशिम, प्लीज मुझे बताएं कल क्या हुआ था? हुरिया को लगा कि हाशिम उससे जरूर कुछ छुपा रहा है। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही पूछा कि तुम परेशान मत हो। हाशिम ने गाड़ी वापस सड़क की जानब मोड़ ली। हुरिया ने फिर दोबारा नहीं पूछा क्योंकि वो जानती थी कि वो उसे नहीं बताने वाला। हाशिम का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था और उसके मन में कई सवालात जन्म ले रहे थे। हुरिया को ड्रॉप करके वो घर आ गया। हाशिम, मुझे चाबी ले। हाशिम अपने बेड पर आंखों पर बाजू रखे लेटा हुआ था और उसके जहन के पर्दे पर कल रात वाला वाकया किसी फिल्म की तरह चल रहा था। वो इस सब मामले को समझने की कोशिश कर रहा था मगर समझ नहीं पा रहा था। हाशिम! दानिश उसे ढूंढता हुआ कमरे में आया। हाँ, वो ऐसे ही आंखों पर बाजू रखे लेटा रहा। क्या हुआ है? तूने कॉल की थी कि कुछ बात करनी है। दानिश कुर्सी खींचकर बेड के करीब बैठ गया। हाशिम ने आंखों से हाथ हटाया और उठकर बैठ गया। कोई परेशानी वाली बात है? दानिश ने अंदाजा लगाया। शायद। हाशिम ने गहरी सांस ली। हुरिया ठीक है? दानिश ने उसे देखा। जवाबन हाशिम ने सारी बात उसके गोश गुजार कर दी। मगर यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है हुरिया नींद में चलती हुई चली गई हो। दानिश का दिल इस बात को मानने से इनकारी कर रहा था। उसे नींद में चलने की आदत नहीं है और अगर वो चली भी गई नींद में
तो उसके वो अल्फाज मुझे बेचैन कर रहे हैं। ऊपर से उसे अब कुछ याद भी नहीं है। हाशिम काफी परेशान नजर आ रहा था। तुमने हुरिया को ये सब बताया? दानिश ने सवाल किया। नहीं, हाशिम ने नफी में सर हिलाया। ठीक किया। खैर, तुम अभी फिलहाल रुखसती की डेट फाइनल कराओ। हो सकता है कि ये सब बाद में ठीक हो जाए, या फिर ये वो मसला ही ना हो जो तुम्हें लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है। दानिश ने अपनी राय दी। हाशिम ने पुरसोच अंदाज में असबात सर हिला दिया। रात के खाने के बाद हुरिया अपने कमरे में सोने जा रही थी जब किसी लड़की के रोने की आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी जानब की। हुरिया ने अपना ध्यान उस जानब से हटाना चाहा, मगर हटा ना सकी और आवाज़ का पीछा करती हुई घर के पिछले हिस्से की तरफ चली गई। वहां पहुंचकर हुरिया ने देखा कि एक लड़की जो तकरीबन हुरिया की हम उम्र की थी, दीवार से टेक लगाए बैठी हुई ज़ारो कतार रो रही है और उसके सामने एक मैयत रखी हुई है जिसका चेहरा ढका हुआ था। हुरिया हैरान थी कि यह सब आखिर हो क्या रहा है, ये मैयत किसकी थी और ये लड़की कौन थी और इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। ऐसे ही बहुत से सवाल हुरिया के जहन में गर्दिश कर रहे थे। वो हिम्मत करती हुई आगे बढ़ी और मैयत के करीब बैठ गई। हुरिया ने जैसे ही चेहरा देखने के लिए मैयत के चेहरे से कफन हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, पास बैठी लड़की ने हुरिया का हाथ पकड़ लिया। हुरिया ने घबराए हुए इस लड़की से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर उसकी गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। हुरिया काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसकी गिरफ्त से निकलने में पूरी तरह से नाकामयाब हो रही थी। हुरिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? मुजफ्फर साहब किसी काम से घर के पिछले हिस्से में आए थे और हुरिया को यूं इस तरह वहां अकेला बैठा देखकर काफ़ी हैरान हुए। हुरिया की समातों से उनकी आवाज़ टकराई तो उसकी जान में जान आई। उसने सर उठाकर मुजफ्फर साहब को देखा और फिर अपने आसपास, जहां अब कोई भी नहीं था। कुछ नहीं, वो बस इतना ही कह पाई थी, चलो अपने कमरे में जाओ, रात काफ़ी हो गई है, सो जाओ जाकर, शाबाश। मुजफ्फर साहब ने शफकत भरे लहजे में कहा। हुरिया ने सर असबात में हिलाया और वहां से चली गई, मगर अब का उसका जहन अब भी वहीं अटका हुआ था। वो कौन थी और वो मैयत किसकी थी? और अगर वो लोग इंसान थे तो अचानक कहाँ गायब हो गए? और अगर इंसान नहीं थे तो फिर मुझसे क्या चाहते हैं? उसका जहन बुरी तरह उलझ चुका था। यही सोचते सोचते वो नींद की वादियों में उतर गई। हुरिया की नींद अभी कच्ची ही थी जब उसे अपने पैर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। हुरिया ने झट से आंखें खोली और हाथ बढ़ाकर अपने पैरों से कंबल परे किया। सामने का मंजर देखकर उसके हलक से एक दिलखराश चीख निकली। उसके पैरों पर और पैरों के पास बड़ी बड़ी छिपकलियां पड़ी हुई थीं। हुरिया रोते हुए खुद को झाड़ने लगी और साथ ही साथ जोर जोर से किसी को मदद के लिए पुकारने लगी। हुरिया की नज़र जहां भी जा रही थी उसे हर तरफ छिपकलियां ही दिखाई दे रही थी। फर्श पर, दीवार पर, उसके बेड पर, हर जगह हुरिया बुरी तरह से रोने लगी। हूर, मेरी जान, क्या हुआ है? समा बेगम और इम्तियाज साहब आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। हुरिया बेड से उतरकर भागकर समा के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। हूर, क्या हुआ है? उन्होंने उसे खुद से अलग करते हुए उसके बाल समेटे और प्यार से पूछने लगे। वो छिपकली हुरिया के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। जब उसने पलट कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। हर चीज अपनी जगह पर सही सलामत थी और वहां छिपकलियों का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। वो फटी फटी निगाहों से कमरे के चारों तरफ देखने लगी। कहाँ है? यहाँ तो कुछ नहीं है। इम्तियाज साहब ने आगे बढ़कर कमरे का जायजा लिया। अभी यहीं पर थी, बहुत सारी थी बाबा, मैं झूठ नहीं कह रही। हुरिया ने कदर अटकते हुए अपनी बात मुकम्मल की। अच्छा चलो तुम मेरे कमरे में सो जाओ। समा बेगम इसे अपने साथ ले गईं। हुरिया ने जाते जाते एक बार फिर अपने बेड पर निगाह दौड़ाई, मगर इस बार भी उसे वहां कुछ ना था।
इम्तियाज साहब भी हुरिया की ये हालत देखकर फिक्रमंद हो गए थे। इम्तियाज, आपने देखा कल रात हुरिया का खौफ तो अब भी कुछ कम नहीं हो रहा था। पहले काफ़ी हद तक दम किए हुए पानी से वो बेहतरी की तरफ लौट रही थी, मगर अब तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अभी उसके साथ ये हादसा हो गया। मैं तो बहुत फिक्रमंद हो गई हूँ। आप बात करें उनसे, कहीं हुरिया के साथ। समा बेगम ने दानिस्ता तौर पर बात अधूरी छोड़ दी। ऐसा मत सोचो तुम, हुरिया ठीक है, और रही उनसे बात करने की बात तो वो अभी अपने गांव गए हुए हैं। कुछ दिन के बाद उनकी वापसी है, मैं बात करूंगा इसके बारे में, और उनसे तुम जब तक उसे मंजिल का पानी दम करके देती रहो। इम्तियाज साहब ने जवाब दिया। और हाँ, एक और बात करनी थी आपसे। सबा मुझसे रुखसती का कह रही थी, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? समा बेगम याद आने पर बोली। उसे हाँ कर दो, मैं भी यही चाहता हूँ। हुरिया जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए ताकि हम भी अपने फर्ज से सुखदोश हो जाएं। इम्तियाज साहब ने धीमे लहजे में कहा। ठीक है, फिर मैं आज सबा आ रही है, मैं आज ही सबा से बात करूंगी। समा बेगम होले से मुस्कुराईं। ठीक है, तुम बात कर लेना, मैं भी शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तुम अभी चाय ला दो मुझे, इम्तियाज साहब ने कहा तो समा बेगम सर असबात में हिलाती हुई चाय लेने चली गईं। मामा, आप आज जा रही हैं ना मामू के घर उनसे रुखसती की बात करने? हाशिम ने नाश्ता करते हुए पूछा। ये सवाल कल से तुम कोई चौथी पांचवी बार पूछ चुके हो मुझसे। सब खैरियत है ना? सबा बेगम ने हाशिम के इस बार सवाल करने पर उसे कान से पकड़ लिया। हाँ, सब ठीक है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रहा, मेरा कान छोड़ दें। उसने एक आंख बंद करते हुए कहा। सुधर जाओ तुम। खैर ये बताओ कि हुरिया की तबीयत कैसी है अब? उन्होंने हंसते हुए उसका कान छोड़ दिया। आप जाएंगी तो खुद पूछ लीजिएगा, हाशिम ने जवाब दिया। क्यों, तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? सबा बेगम हैरान हुई। अच्छा लगेगा, आप दुल्हे को साथ लेकर जाएंगी, वो शरारत से बोला। बस तो तुम रहने ही दो, सब पता है तुम्हारे ड्रामे। मुझे बताओ कि तुम क्यों नहीं जा रहे? सबा बेगम ने उसे लताड़ा। आज अस्पताल में काम कुछ ज्यादा है, इसलिए मैं नहीं चल सकता। आप दानिश को साथ ले जाना और लगे हाथों उसकी शादी की बात कर लेना। हाशिम ने आखिरी जुमला हंसते हुए मुकम्मल किया। अच्छा चलो ठीक है, हुरिया के लिए कोई पैगाम? सबा बेगम ने शरारत से पूछा। नहीं, कोई पैगाम नहीं है, जो भी पैगाम देना होगा मैं खुद दे दूंगा, शुक्रिया आपका। उनकी बात सुनकर वो हंस पड़ा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो भी हंसने लगी। अल्लाह हाफ़िज़, रात को मिलते हैं। हाशिम सबा बेगम का माथा चूमते हुए अस्पताल के लिए निकल गया। अल्लाह के अमान में जाओ। सबा बेगम मुस्कुराता हुआ उसे जाता देखने लगी। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? इम्तियाज साहब ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, कैसे हैं? कैसे याद किया? दूसरी तरफ से इमाम साहब की आवाज़ स्पीकर पर उभरी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक, बस थोड़ा सा बेटी की तरफ फिक्रमंद हूँ। इम्तियाज साहब बोले। सब खैरियत तो है ना? इम्तियाज, क्या हुआ है बच्ची को? वो थोड़े फिक्रमंद हुए। इसी बारे में बात करने के लिए मैंने आपको कॉल की है। आप वापस कब आ रहे हैं? इम्तियाज साहब ने इस्तफसार किया। अभी कुछ दिन और हूँ मैं यहाँ, पर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते तक आ जाऊँगा। क्यों, कोई मसला हो गया है? इमाम साहब ने जवाब देने के बाद पूछा। जवाबन इम्तियाज साहब ने हुरिया के साथ तमाम होने वाले हादसात का जिनका उन्हें इल्म था वो मुख्तसर अंदाज में इमाम साहब के गोश गुजार कर दिया। जो आप बता रहे हैं वो सब तो काले जादू के असरात लगते हैं इम्तियाज मियाँ, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता हूँ। आप एक काम करें, सूरह नास पढ़कर पानी पर दम करें, फिर हुरिया बेटी को पिलाएं। बेशक अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत होती है। जब तक मैं भी कोशिश करूँगा कि जल्दी वापस आ जाऊँ, फिर देखते हैं कि असल मसला यही है या फिर कुछ और। इमाम साहब ने धीमे लहजे में कहा। ठीक है, अब मैं रखता हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त में से मुझे वक़्त दिया।
اللہ آپ سے راضی ہو۔ امتیاز صاحب بولے کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے، آمین۔ انہوں نے نرمی سے کہا آمین، اللہ حافظ۔ امتیاز صاحب نے کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ اب انہیں ایک نئی پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ آخر کون تھا وہ جو اس کی پھول جیسی معصوم بچی پر کالا علم کروا رہا تھا؟ آپ کب آئے؟ آج اتنی جلدی آ گئے، سب خیریت تو ہے نا؟ سما بیگم کمرے میں آئیں۔ امتیاز صاحب کو وہاں پا کر تھوڑی حیران ہوئیں۔ ہاں بس ابھی ہی آیا تھا، انہوں نے جواباً کہا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ سما بیگم کو فکر لاحق ہوئی۔ میری آج امام صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے اینک اتار کر میز پر رکھ دی۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کے مطابق جو کچھ بھی حوریہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کالے جادو کے اثرات ہیں۔ امتیاز صاحب دھیمی آواز میں بولے کالا جادو؟ سما بیگم نے زیر لب دہرایا۔